the best T20 event in the world was postponed amid the increasing fear. But BCCI came up with a plan because such high were the stakes. Indian Premier League incredibly shifted their base to United Arab Emirates. The IPL was finally back, much to cricket lovers' satisfaction, and the players did not disappoint as they produced some breathtaking action. From the fantastic Rajat Bhatia smashing 5 sixes in an over to Mumbai and Punjab playing an incredible double super over. From Delhi's Gabbar and Rajasthan's Ben Stokes having their century romance to Assam boy Riyan Parag producing some traditional Bihu dance. While there were some jaw-dropping moments as cricketers flew like birds, MS Dhoni delighted the whole world with just 2 words: definitely not. After a thrilling tournament, Delhi Capitals made it to first ever IPL final, but in the end, it was Rajat Sharma who once again led Mumbai Indians to a historic 5th title. So that was the story of last year, and now we enter into the 14th edition of the tournament. Ahead of the season, the teams have added some new players in the auction as they have spent lots and lots of money. But the question still remains the same. Will another team prove to be competitive rivals, or is it going to be a sensational hat-trick for Mumbai Indians' IPL titles? With just 1 day away from IPL 2021, the waiting game finally ends as the excitement begins. SportsTiger presents Mid-Wicket Live IPL 2021 curtain raisers on your screen. Hello and a warm welcome everybody. Thank you so much for joining us. We are back. We did not think that it will start so early, but it is. We ended the 2020 season in the year 2020. November was the month, and we are entering into April 2021, and it's all beginning again. IPL 2021, 14th edition of Indian Premier League, and the excitement has already reached the highest echelon. We will be bringing each and every update on your screens, and to join me, there are 2 stars who are waiting at the backstage to talk to me, and I'm waiting to talk to them. The first one is, of course, none other than the former IPL player, KKR star, and his name is Mr. Rajat Bhatia. Rajat Bhaji will be joining us. Rajat Bhaji, how are you? I'm good, Vedant. All good. आप कैसे हैं? All good, Paji. All good. 1 दिन कुल बचा है अब इंडियन प्रीमियर लीग को चालू होने में. एक्साइटमेंट कौन से लेवल पे है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और एक अच्छी बात भी है कि इंडियन प्रीमियर लीग वापस इंडिया में स्टार्ट होने वाला है. लास्ट ईयर आप जानते हैं कोविड के कारण कैसे आगे ये शिफ्ट हो गया था, और ऐसा लगता है अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि अभी खत्म हुआ है और अब फिर से इंडिया में वापस आया है. तो एक अच्छी बात है, और लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होने वाला आईपीएल अब ये. एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड. और इसी के साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनको ही बुला लेते हैं. मोंटी पाजी, एक बार आप भी आ जाइए, आपको भी ऑन स्क्रीन लेकर आ जाते हैं. सो मोंटी पानेसर joining us all the way from UK. Hello Monty, how are the expectations for IPL 2021? Yeah, I think इंग्लैंड में सब यही चाहते हैं IPL शुरुआत होने के लिए. अभी काउंटी सीजन भी आज ही शुरू हुआ है, एंड क्रिकेट सब यही देखना चाहते हैं, IPL क्रिकेट यूके में. बिल्कुल बिल्कुल. आईपीएल के जो मतलब यूके के काफी सारे स्टार्स हैं वो इस बार आईपीएल में खेलने वाले हैं. भाई जेसन रॉय, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि उनको ही मौका मिल सकता है, पर उनको मौका मिल गया. और ओवरऑल द पोजीशन ऑफ द इंग्लिशमैन इन आईपीएल इज जस्ट राइजिंग डे बाय डे. यू सी Owen Morgan is now become the captain of Kolkata Knight Riders. You see Jason Roy, Johnny Bairstow. Players are coming up, and there are some players who are saying that we are not coming. Let's go it. We are not coming. So what are your thoughts, Monty? How is cricket actually evolving? हाँ, आपकी बात सही है. आई थिंक अंग्रेज जो प्लेयर आईपीएल में अभी ईच ईयर इंक्रीज हो रहा है, एंड ये तो बिकॉज ओवेन मॉर्गन ने, जब हम इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता 2019 में, एंड अभी T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, सब लोग यही कह रहे हैं वो टूर्नामेंट तो इंडिया इंग्लैंड का ही होएगा,
और कोई जी नेशंस है वो अभी इंग्लैंड इंडिया के लेवल पे नहीं है, बट आई कंप्लीटली डिसएग्री बिकॉज इंडिया में तो T20 की गेम ऐसी होती है, एक दो प्लेयर की इफ इट्स योर डे आप गेम जीत सकते हैं, पर IPL में हमको सबको मालूम होएगा कैसे प्लेयर इवॉल्व हो रहे हैं इंडियंस कंडीशंस में, एंड यही सबसे आई थिंक भारत को ये परेशानी यही है दैट इतने अंग्रेज प्लेयर IPL में अभी है बिकॉज इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है. Rajat Bhai, I have done almost 60-70 lives with Monty Panesar, and this is for the first time I'm seeing him speaking in Hindi. So something new for me as well. So this, let's get on. Bhai, we will start from our first franchise, that is of course Rajasthan Royals. We'll start with Rajasthan Royals. A lot many changes have been done. ऑक्शन के अंदर काफी सारी उम्मीदें थी और अच्छी चीजें निकल के आई हैं. पहला सवाल, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पारी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन द एब्सेंस ऑफ आर्चर, डू यू थिंक Chris Morris, who has been bought for a whopping price, can actually step into his shoes and make a difference for a side like Rajasthan Royals? Rajat Bhai, over to you. देखिए, एक प्लस पॉइंट मॉरिस का ये है कि वो बैटिंग काफी अच्छी कर लेते हैं, और रही बात कि वो आर्चर को रिप्लेस उस तरीके से कर पाएंगे, देखिए डिपेंड करता है कि वो पूरे मैचेस खेलने चाहिए. हमने देखा है कि ज्यादातर IPL के अंदर जब वो कंसिस्टेंटली खेलना स्टार्ट होते हैं इंजर्ड हो जाते हैं. इंजरीज उनकी ऐसी हैं कि वो बार बार बहुत ज्यादा आपको इंजर्ड होते हुए दिखते हैं, ज्यादातर तब जब आपको कंसिस्टेंटली उनको क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं. और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो नॉर्मली IPL में बहुत अच्छा करते हैं, अपनी कंट्री के लिए इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो सेट नहीं हो पाते, वो जगह उनको नहीं मिल पाती है. मॉरिस ये जरूर चाहेंगे कि IPL में अच्छा करें, और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरीके का उनका लास्ट ईयर IPL गया है वो जरूर चाहेंगे कि इस साल IPL में अच्छा करें. और मुझे उम्मीद है कि बस वो इंजर्ड ना हो, तो फिर शायद उनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी. Absolutely. I think the first thing which needs to be kept in mind is इंजर्ड नहीं होने चाहिए. कहीं अगर क्रिस मॉरिस इंजर्ड हो जाते हैं तो इतने महंगे प्राइस पे आपने उनको खरीदा है, और उनके बाद अगर आप उनकी सर्विसेज नहीं ले पाए तो इट विल बी अ बिग ब्लो फॉर राजस्थान रॉयल्स. मोंटी भाई, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. स्टीव स्मिथ वाज द कैप्टन इन 2020. हिज सीजन वाज एब्सोल्युटली बिजार. इट वुडंट बी रॉन्ग टू से दैट इट वाज अ बिजार सीजन फॉर हिम as a batsman, as a captain, and because of that he has not only been asked to leave the captaincy, he has also been asked to leave the franchise. Now when Steve Smith is not there, somebody like Sanju Samson will be doing the captaincy. Now if Sanju Samson will be doing the captaincy, I'll just update you that he is the Kerala state captain. Do you think he can emulate Kerala's captaincy for Rajasthan Royals and help Rajasthan Royals win the title this year? आई थिंक जीतने तो बहुत मुश्किल होएगा राजस्थान रॉयल को. संजू सैमसन को अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कैप्टनसी करने के लिए, एंड BCCI सौरव गंगुली यही देखेंगे लीडर कैसे है. लीडरशिप क्वालिटी है संजू सैमसन में, इतनी अच्छी क्वालिटी है, बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी इतनी अच्छी करते हैं, एंड यही वो चाहते हैं. बिकॉज अभी देखो ऋषभ पंत भी अभी हुआ है दिल्ली कैपिटल्स का भी कैप्टन. सो थोड़ी माइंड में ये तो है अभी BCCI में. देख विराट कोहली हुन 1-2 साल, पता नहीं कितने साल वो कैप्टनसी करेगा, डिपेंड होता है जे T20 वर्ल्ड जीत जाए और ना जीते, बट वो लीडरशिप का एक ट्रांजिशन चाहिए भारत को. एंड मे बी संजू सैमसन का जो बहुत अच्छी कैप्टनसी दिखाएंगे, एंड एक हमको मालूम नहीं है ये क्वालिटी कैसी है संजू सैमसन की. सो ये भी हम देखना चाहते हैं. जैसे दिल्ली कैपिटल का लास्ट ईयर हमने देखा था, AR शायर का कितनी अच्छी लीडरशिप की, यही अपॉर्चुनिटी है, एंड ये अच्छी वो लीडरशिप दिखा सकते हैं राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ्स में ले जाएं, वापस वो फिर इंडिया में टीम में आ सकते हैं. Well, absolutely. I think Sanju Samson has a big opportunity to make it back to the India's playing 11. He was included in the T20Is against New Zealand, but because of his performances, he was just asked to leave the team and go back to the domestic circuit, work there and probably come back. This is the time for Sanju Samson to actually make a mark, and if he makes a mark, I think Monty Panesar is absolutely correct.
he can probably be back in the team. The overall squad of Rajasthan Royals look really very good this year, and the expectations of the franchises, expectations of the fans will be at this level. David Warner, Manan Vora, and of course Riyan Parag will and Yashasvi Jaiswal are the 5 batsmen, 3 wicket keepers, all rounders and bowlers, looking like a very, very good team. It will be good to see if this team can actually make a difference. Now let's move to the next franchise actually, and the next franchise is Chennai Super Kings. The first question, Rajat Paji, which actually comes to my mind is the return of Mr. IPL Suresh Raina, second highest run scorer when it comes to Indian Premier League. Can he be the difference for Chennai Super Kings? Because last time around, they faced some difficulties in UAE. Now they are back in India, not back in their conditions because they are not playing in Chennai, not even a single game. But do you still feel that Suresh Raina can be the difference? I think there seems to be a technical issue. Monty, what do you think? Can he make the difference? Well, Suresh, Suresh Raina की तो सब रिटर्न हो रही है, एक्साइटमेंट तो है, बट एक बात ये है, चेन्नई सुपर किंग की अभी काफी ओल्ड टीम है, एंड धोनी ने भी काफी खेली है गेम, सुरेश रायना ने भी बहुत खेली है, एंड ब्रावो भी हो गया, रविंद्र जडेजा हो गए, ये सब से हम एक्साइटमेंट तो बनाना चाहते हैं, बट ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जे चेन्नई सुपर किंग्स ने कामयाबी चाहते हैं, प्लेऑफ्स के लिए जाने। मेरी एक और भी ख्वाहिश है, मोइन अली को ओपनिंग करनी चाहिए, बिकॉज वो फिर क्या होएगा, जब वो अच्छा स्टार्ट दे पाएगा, फिर वो प्रेशर कम हो जाएगा। सुरेश रायना को अच्छा परफॉर्म करना, धोनी को, सब एक्सपीरियंस प्लेयरों को, जब एक्सपीरियंस प्लेयरों को थोड़ा रिदम मिल गया, फिर वो भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। पर सुरेश रायना भी आ रहे हैं वापस, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होगी, बट वो जैसे नहीं कहते हैं, थोड़ा एक्सपेक्टेशन में नए प्लेयर आते हैं, वो सपोर्ट करें, अच्छा परफॉर्म करें, जैसे सैम करन हुआ, कितना अच्छा खेले, ये बहुत जरूरी है चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छा खेलना, बिकॉज जब हम एक्सपीरियंस प्लेयर पे ऊपर सब प्रेशर डाल जाते हैं ना, वो उम्र के हिसाब से हमको कोई मालूम नहीं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। यंगस्टर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज टीम गेम है, T20 में ऐसा नहीं है एक दो खिलाड़ी जीत पाएंगे। हमने देखा है MS धोनी, वो प्लेयर इंडिया में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, एंड यही इंडिया चाहती है, धोनी वैसे ही खेले जैसे वो खेल पाएंगे, बिकॉज अबू धाबी चेन्नई सुपर किंग के लिए वो कंडीशंस वाज लाइक सूटेड नहीं थी, बट इन तमिलनाडु, इन इंडिया, यस, चेन्नई सुपर किंग्स को अच्छा खेल के, बट यंगस्टर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। Monty, it will be interesting to see because they are not playing even a single game in Tamil Nadu this year because of the new changes done by Board of Control for Cricket in India. Rajat Bhatia वापस आ गए हैं. So my question to you, can this be Mahendra Singh Dhoni's last season? Before you answer that question, I want to tell you a statement given by CSK CEO, and he feels that individually he feels that this will not be MS Dhoni's last IPL edition. आप खेल चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में, क्या लगता है कितने साल और खेल पाएंगे? देखिए, वो उनकी चॉइस है, उनको अगर लगता है कि वो अभी खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हर साल पिछले 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि इनका लास्ट सीजन ही है। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा उनको चाहती हैं कि वो उस जगह पे उन्होंने क्योंकि एक टीम को बिल्ड करते हैं, उन्होंने उस टीम को बिल्ड किया हुआ है, जो कोर स्ट्रेंथ है उनको पता है क्या है। अगर आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग का जो वो फॉर्मूला है ना खेलने का, कि वो जो एक्सपीरियंस के साथ खेलने वाला, वो धोनी की वजह से ही है वहां पे, और वो चीज जो उनके अंदर वो एक क्लास है कि किस तरीके से अपने प्लेयर को यूज करना है, वो ज्यादा कैप्टन्स के अंदर नहीं है। उनको पता है अपने प्लेयर को कैसे यूज करना है। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है ये चीज समझना कि आपका कौन सा प्लेयर किस टाइम पे आपने उसको उस जगह पे बॉल करानी है, किस टाइम पे आपने उसको बैटिंग करानी है। इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी खेल चुके हैं जो अब आपको बिल्कुल भी इस टीम का पार्ट नहीं दिखेंगे, बट जब तक उनको यूज किया
बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। अब वो किसी और फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं, बट वो महेंद्र सिंह धोनी थे जो उनको यूज कर लिया। बाकी फ्रेंचाइजी की में वो बाहर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी वो उनको यूज नहीं करना जानते। तो उनको अपना फॉर्मूला पता है। और रही बात उनके खेलने की, जब तक वो एंजॉय कर रहे हैं, खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस अलाउ करती है तो वो खेले, क्या मना है इसमें। बिल्कुल पारी, हम भी यही चाहेंगे। बहुत बड़ा महेंद्र सिंह धोनी फैन मैं भी हूं। आई वुड वांट हिम टू प्ले फॉर एज मेनी इयर्स एज ही कैन। मोंटी पारी, आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स की बात करते हैं। पंजाब किंग्स के अंदर 3 बहुत बड़े नाम आए भाई इस साल। यू नेम इट, शाहरुख खान उनकी तरफ है, मोजेस हेनरिक्स को मौका मिला है, जाय रिचर्डसन आए हैं। जो एक ट्रॉफी ड्रॉट है, एक ट्रॉफी ड्रॉट लगा हुआ है। आज तक आईपीएल का टाइटल नहीं जीते। क्या लग रहा है इस साल क्या केएल राहुल की कप्तानी में कोई डिफरेंस हो सकता है? लोग आई थिंक प्रॉब्लम ये थी ना, लास्ट ईयर वो ग्लेन मैक्सवेल की पोजीशन थी, वो पोजीशन में थे जीतने के लिए, पर ग्लेन मैक्सवेल आई थिंक थोड़ा हार्ड फाइंड किया। फॉर्म जब अच्छा नहीं होता है ग्लेन मैक्सवेल का, वो फिर जैसे 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, वो फील्डिंग में चलो अच्छी कर लेते हैं, थोड़ी बॉलिंग अच्छी कर लेंगी, बट पंजाब किंग्स को बैटिंग चाहिए थी फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल, वो नहीं कर पाए। सो ऐसे ही वो फिर वो गेम नहीं जीत पाए वो पंजाब किंग्स। एंड सो अभी नमी कह दो न्यू स्ट्रेटजी हुई कि कैसे क्रिस गेल को मैनेज करेंगे। डेविड मलान है नंबर 1 बैट्समैन अभी T20 के। वो ओपनिंग का स्लॉट जो मिलेगा वो डेविड मलान को थोड़ा मिडिल ऑर्डर में डालेंगे। क्या प्रॉब्लम ये है, वो गेम कैसे जीतेंगे, यही पंजाब की कमी है। अभी मैच सिचुएशन में हो जाते हैं, पर पता नहीं कैसे वो प्लेऑफ्स में। लास्ट ईयर देखो, बॉटम पोजीशन में हाफ वे टूर्नामेंट में फिर 5 गेम 6 गेम इन अ रो जीत पाए बिकॉज क्रिस गेल का इंट्रोडक्शन हुआ। पर क्रिस गेल फुल सीजन नहीं खेल पाएंगे, वो फिटनेस का लेवल नहीं है। एंड प्लस वो एक लगन होती है, एक आपको पैदा करना चाहते हैं खिलाड़ी को। आई वांट टू प्रूव अ पॉइंट, दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूँ अभी मैं भी वो परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड क्रिस गेल को ऐसे वो हंगर पैदा करनी पड़ेगी, फिर वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये होगी केएल राहुल की सिचुएशन। केएल राहुल में टैलेंट तो है, पर टीम को कैसे जिताना, कैप्टनसी कैसे करना, वो अभी क्वेश्चन मार्क है केएल राहुल की कैप्टनसी में। Only I'm glad you actually spoke about somebody like Glenn Maxwell. I'm glad that you spoke about Chris Gayle and of course KL Rahul. रजत पाजी, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल। पिछले साल हमने देखा था कि क्रिस गेल को पहले गेम्स में खिलाया नहीं, ग्लेन मैक्सवेल को सारे गेम में खिला के परफॉर्मेंस आई नहीं। उसकी वजह से केएल राहुल की बैटिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था उनपे। इस बार थोड़े इंक्लूजन ऐसे करे हैं, शायद मोजेस हेनरिक्स को सारे गेम खिलाना चाहते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट है। शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी जिनने तमिलनाडु के लिए बेहतरीन परफॉर्म किया डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, उनको भी खरीदा है। क्या लग रहा है इस बार थोड़ा फ्रीली खेलेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरीके से टोन सेट करती है पंजाब। क्योंकि आप ये देखें, आप हमेशा उन्हीं प्लेयर्स की ओर देखते हैं जो आईपीएल में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। क्रिस गेल जितनी बार फेल हो, आप फिर भी मुड़ के उनकी तरफ देखेंगे। मैक्सवेल जितनी बार फेल हो, हर टीम उसके पीछे भागती है जब ऑक्शन होती है कि नहीं? अगर आप उनको जिस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं उससे कहीं दुगना ज्यादा स्पेंड करके आप उनको खरीदते अपनी टीम में डालते, क्योंकि उन्होंने वो एक जगह मेंटेन की है, वो चाहते हैं। अब रही बात शाहरुख खान की या आप दूसरे प्लेयर्स की बात करें, वो आईपीएल खेले हैं बट एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं। तो आप ये चाहेंगे कि शुरू के गेम्स में, जो शुरू के गेम्स है ना, वो ऐसी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां पे उनका जो कप्तान है वो काफी यंग है, उस पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि वो एक टोन जो होती है ना, वो सेट होने वाली T20 में, वो या तो बहुत जल्दी सेट हो जाए, और या फिर आप चाहते हैं कि वो जिस टाइम पे आपकी टीम को जरूरत है ना, जो ग्राफ ऊपर जाना है, उस टाइम पे जाए। आप अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे राहुल पे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं डालना चाहेंगे। अगर इस साल पंजाब चाहता है कि चीजें उनके फेवर में जाए तो राहुल को बहुत फ्री दिमाग से खेलना पड़ेगा। एंड वसीम जाफर, द बैटिंग कोच, हैज ऑलरेडी कंफर्म्ड दैट केएल राहुल विल बी ओपनिंग अलोंगसाइड मयंक अग्रवाल विद क्रिस गेल एट नंबर 3. Monty, my next question to you as we move on to our 4th franchise, Kolkata Knight Riders. Shubman Gill will be opening the innings, but who is that second batsman? किसके साथ ओपन करेंगे? कभी खिला देते हैं राहुल त्रिपाठी को, कभी खिला देते हैं दिनेश कार्तिक को, कभी खिला देते हैं नीतीश राणा को, कभी खिला देते हैं सुनील नरीन को। इस साल चालू किसके साथ करेंगे?
आई थिंक ऑप्शंस है अभी केकेआर के पास। ओवेन मॉर्गन की ऐसी कैप्टनसी है जैसे वो चाहते हैं ईच खिलाड़ी क्लिनिकल होए, रोल में क्लैरिटी होनी चाहिए। सो वो अभी देखो ऑप्शंस है, जब कोई टर्निंग विकेट होगी मे बी सुनील नारायण ओपनिंग कर सकते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं राणा, वो भी आ सकते हैं खेलने के लिए। सो ऑप्शंस यही तो है ना। केकेआर अभी कोई सोच रहा है केकेआर प्लेऑफ्स में जा सकते हैं और नहीं। एंड जब हम कैप्टनसी की बात करते थे, यही साल ऐसे लगता है ओवेन मॉर्गन जो टीम को अच्छी बना सकता है, वो फिर एक टेम्पलेट हो जाएगा यंग इंडियन कैप्टन्स को कैसे टीम बनानी, कैसे ये करना। एंड ये चीज आई थिंक अभी हमारे ऋषभ पंत हैं, हमारे यंग कैप्टन संजू सैमसंग है, राजस्थान रॉयल्स में। सो इंडियन से जो कैप्टन है, यंग प्लेयर्स हैं, कोई बात तो केकेआर की नहीं कर पाए बिकॉज किसी को मालूम नहीं है वो कैसे खेलेंगे, टीम कैसे बनानी है, प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करना है। ओवेन मॉर्गन बेस्ट T20 का कैप्टन है दुनिया में अभी। एंड यही आईपीएल में हम देखेंगे केकेआर, ओवेन मॉर्गन अंडर ब्रेंडन मैककलन वो कैसे टीम बनाएंगे। एंड जे ओवेन मॉर्गन केकेआर को प्लेऑफ्स में ले जाएंगे, आई थिंक वी हैव नंबर 2 दादा आफ्टर सौरव गंगुली। ओवेन मॉर्गन का राज होएगा कोलकाता में। लेट्स सी। मेरे को रजत भाटिया आपकी फेस देखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप इस बात से अग्री नहीं करते। मैं जानना चाहूंगा व्हाट आर योर थॉट्स एंड वेयर शुड ओवेन मॉर्गन बैट दिस ईयर। देखिए ऐसा नहीं है मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए सौरव गांगुली के बाद वहां पे जो दूसरा दादा बना वो गौतम गंभीर था, ठीक है ना। क्यों दादा बना? क्योंकि सौरव गांगुली वहां पे 3 साल केकेआर के लिए जो खेले वहां पे वो चीज नहीं ले पाए, बट उसके बाद जो गौतम गंभीर ने आके केकेआर के फैंस को दिया, ट्रॉफी उठाई, एक बार नहीं 2 बार, तो फिर वो वाली जो आप चाहते हैं ना कि वो गद्दी मिलना, वो गद्दी उनको मिली। अब देखिए अब वो टाइम हो चुका है, अब वो फिर से चाहती है केकेआर की फैंस की हाँ यार नहीं, अब वो देख रही है कि इस नए कप्तान के हाथ में, उन्होंने दिनेश कार्तिक के अंदर देखी बट दिनेश कार्तिक उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, केकेआर इतना अच्छा नहीं कर पाई, तो अब मॉर्गन के हाथ में चॉइस है। और मॉर्गन कूल राइडर है, केकेआर के पास एक कूल राइडर है, बहुत ऐसे हैं जिनको अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल है। मैं उनके अंदर वो छवि हमेशा देखता हूं जो एक एस्टैब्लिश कैप्टन, जैसे आप धोनी की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं उनको धोनी के साथ रेट करता हूं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जब सिचुएशन टेंस होती है वो कूल रहते हैं, वो ना ही आपको ज्यादा एक्साइटेड दिखेंगे ना ही वो ज्यादा आपको डाउन दिखेंगे। ऐसी सिचुएशन में ना फिर जो एक अच्छा कप्तान होता है ना वो हमेशा बाजी जीतता है उन कप्तान के अगेंस्ट जो कप्तान अभी मैच्योर नहीं है। तो इस बात से मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं है मैं सहमत नहीं हूं, बट वो दादा की जगह लेने के लिए वैसी फिर टीम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, वो चीज हर जगह फिर वो गिरनी चाहिए, वो गिर गई तो वो दादा भी बन जाएंगे। Well, absolutely, it's a very big statement। अगर दादा बन पाते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो इतने साल हो गए हैं कप जीते हुए, वापस जीत जाएंगे। रजत भाटिया उस टीम में थे जो जीते थे। And of course, I think now it's time to move to our 5th franchise. Big question. I'm talking about Royal Challengers Bangalore. Now, whenever we speak about Royal Challengers Bangalore, the first thing which actually comes into our mind is Virat Kohli, AB de Villiers. And every year we feel that this year will be different for them. But every year they come and they produce some performances which surprise not only us, but even themselves. So, Paji, I will start with you this time. Rajat Paji, what do you think? The inclusion of Glenn Maxwell, because you have already said that every team is going out for Glenn Maxwell even when he is not performing well. Has Glenn Maxwell found the franchise where he belongs? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा। उसका रीजन ये है कि आरसीबी अपने मैचेस बेंगलोर में नहीं खेल रही, आरसीबी अपने मैचेस कहीं और खेलेगी। यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो इस साल आईपीएल के रूल्स में है कि जो भी आपको जो होम एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। अगर ये मैचेस बेंगलोर में हो रहे होते, मैं आपको 100% कहता हूं कि मैं ये कह सकता था कि मैक्सवेल अपनी फॉर्म में बड़ी जल्दी वो आ जाते हैं, क्योंकि वो जो बेंगलोर की जो विकेट है, जो ग्राउंड है ना, वहां पे बैट्समैन ही अपने आप को अगले साल देखता है उसी टीम में, बट
प्रॉब्लम ये होगी कि ये जब बाहर खेलते हैं तो वहां पे आपको किस तरीके की विकेट मिलेगी ये कोई नहीं जानता। तो शुरू के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वहां पे उस तरीके का विकेट मिल गया और मैक्सवेल परफॉर्म करना स्टार्ट हो गए तो फिर डेफिनेटली फिर हाँ जी बल्ले बल्ले है फिर तो। भाई क्या लग रहा है इस साल थोड़ा सा डिफरेंट होगा इनके लिए? आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जैसे वो कोई हम प्लेयर देखते हैं वो रोल मॉडल बनना चाहते हैं टीम के लिए, जैसे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स हो गए, फिर वो लीड करते हैं। आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल लीडर नहीं है, वो थोड़ा वो फॉलो करना चाहते हैं बड़े खिलाड़ियों को। सो आई थिंक दिस बेस्ट अभी लास्ट चांस है ग्लेन मैक्सवेल का, बिकॉज इतनी एक्सपेंसिव प्राइस में उसको टैग दिया एंड ही मस्ट परफॉर्म। उसको परफॉर्मेंस पूरा टैलेंट दिखाना पड़ेगा बैटिंग के लिए। ऐसे नहीं, वो क्या करते हैं ना ग्लेन मैक्सवेल, जब बैटिंग का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होता है, चलो फील्डिंग में थोड़ा अच्छा कर लिया, थोड़ी बॉलिंग में कर लिया, वो माइंडसेट नहीं सही है। माइंडसेट ये है ग्लेन मैक्सवेल ने एंड में जब कोई 20 रन चाहिए 2 ओवर में, 30 रन इन द लास्ट 3, ये ग्लेन मैक्सवेल की स्ट्रेंथ है। जैसे माइकल बेवन की थी, लास्ट हर्डल जंप करके गेम जितानी, एंड दैट ये प्राइस, दैट्स व्हाई उसकी कीमत इतनी हाई है। एंड यही क्वालिटी ग्लेन मैक्सवेल को दिखानी पड़ेगी, बिकॉज वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड शिफ्ट, जैसे वो सोचते हैं मैं व्हाट इज माय रोल, मेरा रोल क्या है आरसीबी में। आरसीबी में यही तो आपका रोल होएगा, 5-6 में बैटिंग करोगे, वो गेम जितानी है आपने। सेकेंडरी फील्डिंग एंड बॉलिंग, प्राइमरी स्किल है बैटिंग। Absolutely, I totally agree that his primary skill should be batting because he is one of the best cricketers I've ever seen when it comes to the limit over format. Rajat Paji, a big question actually, because whenever we speak about Virat Kohli is a batsman who can play anywhere. You want him to bat at number 3, he will bat at number 3. You want him to open, he will open for you. Want him to bat at number 4, he will do that for you as well. But where should he bat in IPL, because he has already confirmed that he will be batting at in the opening sector. Now, if he bats there, will he be as explosive as he is at number 3? देखिए 2020 में आई ऑलवेज फील कि ही शुड बी बैटिंग इन टॉप 3। सो अगर आप ओपनिंग की बात करते हैं, यस वो ओपन कर सकते हैं। अगर आप ये बात करते हैं कि वो नंबर 3 जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए कप्तान है, अपने आप को किसी भी जगह पे डाल सकते हैं। इंडिया के लिए भी अभी उन्होंने T20 में ओपन की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने काफी टाइम क्रिस गेल के साथ ओपन किया है, तो वहां पे क्रिस गेल इनकी जॉब बहुत ईजी कर देते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते थे तो इनको उस स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये है कि इनके साथ कौन ओपन करेगा, किस तरीके से इनके साथ बाकी चीजें चलेंगी। क्या आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप ओपन करेंगे तो जो प्लेयर ओपन करने वाला है उसको नीचे बैटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और आईपीएल में क्या है ना कि जब आप किसी टीम को नया बनाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती हैं कई बार, कि हाँ यार नहीं ये प्लेयर सेट हो जाए ऊपर जाके। और आपने देखा ही था आप कि लास्ट ईयर किस तरीके से मैक्सवेल को कभी कुछ करा रहे थे, कभी कुछ कर। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आरसीबी बैंगलोर में नहीं खेल रही है, कहीं और खेल रही है, तो इस साल शायद आरसीबी अच्छा करे, क्योंकि बैंगलोर में जो फॉर्मूला था ना वो सेट नहीं हो पा रहा था इनका। इस साल हो सकता है कि जब ये जो बाहर खेलेंगे तो वहां पे उनको ये जिस तरीके से खेलना चाहें, जिस तरीके से चीजें करना चाहें, ये कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल जरूर करना चाहेंगे। और एक्सपेक्टेशंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से जरूर यहाँ पे रहेगी। बात करते हैं छठी फ्रेंचाइज की, और वो है जरूर सनराइजर्स हैदराबाद। भाई जब भी इस फ्रेंचाइज की बात आती है मोंटी भाई, तो एक चीज जरूर श्योर है कि आप राशिद खान और इनके कप्तान डेविड वार्नर, इनको आपको प्लेइंग 11 में रखना ही पड़ेगा, आप उनको हटा ही नहीं सकते। पर उनके अलावा वो कौन से 2 और ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिनको आप खिलाना चाहोगे? क्या वो मोहम्मद नाबी हैं, क्या वो जेसन रॉय हैं, क्या वो जॉनी बेस्टो हैं, क्या आप उनको होल्डर को खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे आप? Well, I think ये तो डिपेंड होएगा फॉर्म के लिए कैसे खेलेंगे। अभी देखो सनराइजर्स में तो डेविड वार्नर ऑरेंज कैप मुझको लगता है सबसे ज्यादा जीते हैं। रशीद खान भी एनी गेम सिचुएशन में वो गेम जिता सकते हैं। पर लास्ट ईयर जेसन होल्डर ने बहुत अच्छी गेमबाजी की थी, पर वो पिचेस यूएई में सूट किए जेसन होल्डर को। इंडिया में वो कैसे कर सकते हैं? वो सेम लेंथ को सेम बाउंस मिलेगा, बैटिंग में भी एट द बैक एंड 1-2 छक्के ला के गेम जिता सकते हैं।
वो आई लाइक जेसन होल्डर की पोजीशन। बट अब देखो हमारे पास 3 बैट्समैन है, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन एंड जेसन रॉय। वो तीनों ही अच्छी गेंद बैटिंग कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से बैटिंग में तो स्ट्रांग है। वेवनेश कुमार भी वापस आ रहे हैं, बट कमी है एक फास्ट बॉलर की। वो ओवरसीज फास्ट बॉलर की वो सनराइजर्स को चाहिए, एंड यही तो है। सनराइजर्स को फिर इतनी स्ट्रांग बैटिंग है, पहला ही अंडर प्रेशर है, टोटल बहुत हाई होना पड़ेगा। एंड रशीद खान और नबी का जो स्पिन कॉम्बिनेशन होता है मिड वे, सबको मालूम तो है शुरू से पेस होती है विकेट के लिए। हाफ वे जब विकेट थोड़ी टायर्ड हो जाती है, टर्निंग होने लग जाती है। ये सनराइजर्स का गेम प्लान है, बट प्रॉब्लम ये है सनराइजर्स की, वो डेथ बॉलिंग में नहीं अच्छी बॉलिंग कर पाए अभी। दैट्स व्हाई वो फास्ट बॉलर की बहुत जरूरी है। 3 ओवरसीज बैट्समैन हैं, तीनों तो नहीं खेलेंगे। सो वो ओवरसीज जब कोई फास्ट बॉलर था ना, दे मिसिंग अ ट्रिक देयर। बट हमको मालूम है इंडिया में तो विकेट्स इतनी नहीं बाउंस होती है, पर जब इंडिया में बॉल घूमती है, देन आई थिंक सनराइजर्स आर इन द गेम एंड प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। पर कंडीशंस में ऊपर बहुत डिपेंड करना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद कैसे कामयाब होंगे दिस सीजन। Well, absolutely. I totally agree that playing 11 will be according to the conditions and less on the basis of who is doing what in the team. Rajat Pari, my question to you, and that's a very, very important question. जब भी बात आती है सनराइजर्स हैदराबाद की, उनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो जब भी खेलने आता है ऐसा लगता है कि जितना वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी टीम को देता है उतना ही कंसिस्टेंसी से वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलता है। मैं बात कर रहा हूँ डेविड वार्नर की। आप सारे ओवरसीज खिलाड़ियों को एक तरफ रख दीजिए और आप डेविड वार्नर को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और जिस रुतबे से खेलते हैं ये आईपीएल, ऐसा लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और पैसों से ज्यादा के लिए खेल रहे हैं। क्या लग रहा है इस साल 2016 की जो हीरोइक्स हैं उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके के प्लेयर है डेफिनेटली सब जानते हैं, अगर ये अच्छी फॉर्म में है तो फिर ये हमेशा उस फॉर्म को कंटिन्यू रखना जानते हैं। मैंने इनको आईपीएल के अंदर बहुत कम है कि स्ट्रगल करते हुए देखा है। शुरुआत जब से ये डेयरडेविल्स में थे तब से लेके जहां तक ये इनका सफर रहा है, हमेशा इन्होंने अपने आप को एक अच्छी जो टॉप जो आप 4 बैट्समैन कहेंगे वहां पे मैंने इनको देखा है। अब रही बात कि किस तरीके से ये टीम को हैंडल करते हैं, देखिए एक बार के जो सनराइजर चैंपियन रही थी उस साल ये मेरे ख्याल से टीम के कप्तान थे, और वो साल में इनको सारा जो सनराइजर का जो कोर था उस तरीके से इनको पता चल गया था इस तरीके उसको किस तरीके से चलाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको साथ है वीवीएस लक्ष्मण का। वीवीएस लक्ष्मण जी जो हैं वो डोमेस्टिक पे उनकी काफी नजर रहती है, और सनराइजर की जो स्ट्रेंथ है वो उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स अगर इनके अच्छा करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये 2 ओवरसीज बैट्समैन और 2 ओवरसीज बॉलर जो अफगानिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं उनके साथ खेल के ये अपने मैच के अंदर हमेशा बने रहेंगे। जहां इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा नहीं करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं, और इस साल ये देखना होगा कि इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स कैसा करते हैं। एब्सोल्युटली, अगर इनके डोमेस्टिक प्लेयर्स अच्छा कर पाते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। अभी हाल ही के अंदर हमने अभिषेक शर्मा से भी बात करी थी और वो भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे फ्रेंचाइज के बारे में। चलते हैं हमारी सेकंड लास्ट फ्रेंचाइज पे, और वो है जरूर दिल्ली कैपिटल्स। एक ऐसे नाम के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा मोंटी पाजी। He hasn't had the best of IPLs last year. He hasn't had the best of international, but he was absolutely sensational in the domestic circuit. He helped his domestic side to win Vijay Hazare Trophy, the 50-over format of India. I'm talking about Prithvi Shaw. कैसा साल जाने वाला है पृथ्वी शॉ का 2021 के आईपीएल? हाँ, लोग पृथ्वी शॉ ने काफी मेहनत की थी एंड डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करना, एंड यही कंसर्न था सबका ना, सब यही सोच रहे थे दैट पृथ्वी शॉ कैसे फॉर्म को अच्छा कामयाबी लेके आएंगे आपकी गेम में। एंड वो अभी पृथ्वी शॉ ने दिखाया दैट अभी एबिलिटी है, जब फॉर्म नहीं अच्छा होता है कैसे उसको गेम को कैसे रेक्टिफाई करना,
एंड परफॉर्मेंस अच्छा ले आना वापस। सो यही तो पृथ्वी शो ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई गेम को, बिकॉज प्लेयर के ऊपर यही होता है, जब शुरू से जब कोई प्लेयर बहुत टैलेंट होता है वो सोचते हैं थोड़ी नाइविटी में भी होएगी पृथ्वी शो में, मैं वो नहीं वर्कआउट कर पाएंगे गेम को, आपकी गेम को कैसे बॉलरों के साथ क्या मेथड होना चाहिए, गेम सिचुएशन को क्या कैसे संभालना चाहिए। और हम यही चाहते हैं पृथ्वी शो को देखो, वो बैकग्राउंड काफी सिंपल हम्बल बिगिनिंग्स थी, एंड क्रिकेट में हम यह कहानियां यही अच्छी होती है। पृथ्वी शो अभी वापस आईपीएल में अच्छा खेलें, एंड कोचिंग स्टाफ का भी अच्छा है, देखो मोहम्मद के है हेल्प करने के लिए, रिकी पॉन्टिंग परफेक्ट एग्जांपल है कैसे वो उस गेम को इंटेंसिटी लेके आना, कॉम्पिटिटिव होना, बॉलर पे ऊपर प्रेशर डालना, थोड़ा डोमिनेंस दिखाना, ये चीजें हम देखना चाहते हैं पृथ्वी शो में। वो छोटे से भी बच्चे हैं पर बच्चे को अभी थोड़ा शेर जैसे खेलो, आईपीएल में फियरलेस होना चाहिए, दिखाओ सबको हमारे पास इतना टैलेंट है, हम वापस आना चाहते हैं इंडिया के खेलने के लिए। एंड ये आईपीएल में हम यही चाहते हैं पृथ्वी शो का अच्छा परफॉर्म होए एंड अच्छे रन करे। भाई कितने रन बनाएंगे मोंटी? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। हाउ मेनी रन्स विल पृथ्वी शो स्कोर दिस सीजन? एनी अप्रॉक्सीमेट नंबर? हम चाहते हैं 400-500 तक अच्छे फॉर्म में करें, बिकॉज रिकी पॉन्टिंग भी बहुत खुश होंगे देखने के लिए लास्ट ईयर कैसे स्ट्रगल की थी, कैसे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस किया। एंड आईपीएल में यही कहानियां होती है ना, हम देखते हैं नेपाल के अफगानिस्तान के बच्चों आते हैं खेलने के लिए, पृथ्वी शो देखो सम सोचते थे चलो वो वापस नहीं आ पाएंगे, पर कम बैक करना कैसे किया, कैसे दिखावा हम नमे क्रिकेटर हैं, द रीबर्थ ऑफ पृथ्वी शो, यही हम चाहते हैं ये आईपीएल में ऐसा हो पृथ्वी शो के साथ। Well, absolutely. Rajat Bhatia, my question to you, because you have observed this player very, very closely. I'm talking about Rishabh Pant, comes from Delhi, of course. क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्योंकि इस साल विकेट कीपिंग ही नहीं करने वाले हैं। इस बार जो एक्सपेक्टेशन है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वो यहाँ पे आ गई है, और श्रेयस अय्यर की इंजरी के बाद जो प्रेशर है वो यहाँ आ गया। तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम इनसे? देखिए, ये इस तरीके के प्लेयर है, इनसे कभी भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। वो रीजन ये है कि जब आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये हर मैच के अंदर वो परफॉर्मेंस दें, फिर अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे तो आपको लगेगा यार ये आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उतरे नहीं है। आप इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। इनके हाथ में कप्तानी दी है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये फ्रेंचाइजी ने इनसे रखी हुई है कि ये अच्छा करे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे टीम के अंदर, अजिंक्य राणे थे, अश्विन थे, स्टीव स्मिथ थे, उनको ना कप्तानी देके इनको कप्तानी दी है। इसका मतलब यही है वो चाहते हैं कि वो आगे का देख रहे हैं, आगे का जो फ्यूचर है वो उन्होंने इनके हाथ में दिया है। और डेफिनेटली ये विकेट के पीछे होंगे, इनके पास जो लोग खड़े होंगे वो भी एक्सपीरियंस होंगे, उनसे ये सलाह मशवरा करेंगे। ऐसा नहीं है ये इस तरीके के कप्तान है, बट अगर आप किसी प्लेयर का बेस्ट निकालना चाहते हैं तो आप हमेशा आप उनको फ्री छोड़ेंगे, आप चाहेंगे कि वो, और हमने हमेशा देखा है हर बड़े प्लेयर की स्टेटमेंट कि आप ऋषभ पंत से एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप उनको फ्री खेलने दीजिए। जब ये अगर उस तरीके से चले और इन पे कोई प्रेशर नहीं हुआ तो इस डेट में मैं कहूंगा कि इस आईपीएल में ये बहुत बढ़िया करने वाले हैं। भाई कहां लेके जा सकते हैं अपनी टीम को, ये बताएं। देखिए, लास्ट ईयर तो फाइनल तक पहुंच गई थी टीम, ठीक है, इस साल फाइनल से एक कदम आगे चले जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या बात है, क्या बात है। लास्ट फ्रेंचाइज, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, बट लास्ट फ्रेंचाइज, Mumbai Indians, 5-time IPL champions. This franchise is absolutely different. I don't know पारी क्या खाते हैं ये, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, इतनी बार आप कैसे जीतते हो यार आईपीएल फ्रेंचाइज। मतलब आईपीएल को मतलब ऐसा लगता है कि मुंबई एक तरफ और 7 फ्रेंचाइज एक तरफ। कैन हिटमैन लीड मुंबई इंडियंस टू देयर 6th IPL टाइटल? रजत पारी, आपसे है मेरा एक क्वेश्चन। जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है मुंबई इंडियन का जो बेस्ट चीज़ है वो एक तो इनका ये कप्तान है रोहित शर्मा, दूसरा इनका होमवर्क है। ये अपने पूरे साल अपना जो होमवर्क है ये हमेशा करके रखते हैं, हर प्लेयर पे इनकी नज़र रहती है। डोमेस्टिक के मैचेस में आपको इनका स्काउट हमेशा दिखेगा, चाहे वो आप डेज क्रिकेट कह लीजिए, वनडे कह लीजिए, T20 कह लीजिए, हर चीज़ में इनका होमवर्क रहता है। ये अपने प्लेयर्स का बहुत ठीक तरीके से ख्याल भी रखते हैं।
एक यंग प्लेयर के लिए को किस तरीके से इन्होंने आगे अच्छा मौका देना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है, इनको पता है। तो ये ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते, इनको पता है अपने प्लेयर को कैसे यूज करना है अच्छे तरीके से, कैसे उससे बेस्ट निकालना है। ये अपने फॉर्मूले के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए ये वन ऑफ द टीम्स है, इनका सक्सेस रेट हमेशा ऊपर रहता है। और आप ये चाहेंगे इस साल भी कि अगर इनका उसी तरीके से ये खेले। हाँ ठीक है, 2020 में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपका बुरा जाए, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, या कोई भी टीम हो। तो हो सकता है किसी एक मैच में प्लेऑफ में पहुंचने तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुंबई इंडियंस पहुंचे, और वहां पे एक बुरा दिन जा सकता है। तो हम तो चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस आगे जाए, अच्छा करे, और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना भी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। Absolutely, the expectations will be on top from Mumbai Indians. Monty, last year, Suryakumar Yadav and Ishan Kishan performed really well for the franchise. Can we expect a similar show from both of them, or it will be Hardik Pandya or Pranal Pandya this time? आई थिंक मुंबई इंडियंस का ये है ना, यो यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस तो अच्छा करेंगे, इतना फेयरलेस खेलते हैं एंड इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, एंड टू ब्रदर्स, वो भी हम यही एक्सपेक्टेशन है हमारी। बट हमारी ये नहीं एक्सपेक्टेशन होगी दैट मुंबई इंडियंस अच्छा नहीं खेलेंगे। मुंबई इंडियंस खेलेंगे, बट ये है, हाँ, रोहित शर्मा लास्ट ईयर देखो इंजर्ड हो गए थे जब यूएई में खेले थे, एंड वो फिटनेस लेवल कैसा है रोहित शर्मा का, वो भी एक क्रूशल फैक्टर होएगा। जब हम देखते हैं ना, जो भी कोई स्पोर्ट टीम होती है, एक दो इंजरी हो जाती है, वो सेम टीम नहीं होती है। सो ये मुंबई इंडियंस का बस यही, मुंबई इंडियंस इंजरी फ्री होना चाहिए मुंबई इंडियंस के लिए। जो इंजरी फ्री मुंबई इंडियंस होगी, आई थिंक वो आईपीएल जीत कंफर्टेबली जीतेंगे। एंड दूसरी बात ये है, इफ मुंबई इंडियंस अच्छा चलो खेल पाएंगे, हम ये भी देखना चाहते हैं अर्जुन तेंदुलकर भी खेलें एक दो गेम भी खेल पाएंगे ना आईपीएल में, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। एंड हम भी यही चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो जैसे उसके फादर थे इतने, देखो फादर तो बगैर तो अभी क्रिकेट इतनी पॉपुलर है, एंड यही है, ये हम चाहते हैं अर्जुन तेंदुलकर भी ये आईपीएल में डेब्यू करें। Well, absolutely, it would be great for Sachin Tendulkar watching it from home that if Arjun Tendulkar debut for Mumbai Indians, it will be very, very good sight for Sachin, because he served the sport, he served the nation for so many years, and now if he ends up seeing his son coming out on the field and performing for Mumbai Indians, it would be great. Paji, my last question to you before we actually sum this curtain raiser show. Rajat Paji, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, what are the expectations from IPL, and who do you think will win IPL 2021? मेरी एक्सपेक्टेशन आईपीएल से सिर्फ इतनी है कि ये स्मूथली रन हो जाए, आराम से स्टार्ट हो जाए और आराम से फिनिश हो जाए। कोविड का टाइम चल रहा है, आपको पता है इस टाइम पे इंडिया में किस तरीके से कोविड के केसेस ऊपर जा रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आईपीएल स्टार्ट हुआ, कुछ कोविड के पेशेंट्स आपको आईपीएल टीम में निकल के आने लगे, आपने आईपीएल को बंद कर दिया। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बीसीसीआई को। हर फैन, हर प्लेयर ये चाहता है कि ये शो जो है ये रन हो और स्मूथली खत्म हो। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो सिर्फ ये है कि ये पूरा शो कंप्लीट आराम से स्टार्ट और खत्म हो जाए। अब बात रही चैंपियन होने की, इस साल जो होम एडवांटेज है वो किसी भी टीम के पास नहीं है, तो हम ये कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी टीम जीतेगी। मैं ये चाहूंगा कि इस साल आरसीबी जीते, वो मतलब ये मेरी अपनी, मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते। उसका रीजन ये है कि आने वाले टाइम में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जब आप आरसीबी को जीतते हुए देखेंगे तो विराट कोहली उसके कप्तान है। T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर आप आईपीएल में वो जीत के जाते हैं तो आपको उस कप्तान पे कॉन्फिडेंस रहता है, आपकी बैकिंग रहती है। अगर आरसीबी नहीं जीतता तो वो कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएट होता है, यार इतने साल से कप्तान बने हुए हैं अभी तक नहीं जीत पाए, तो फिर वो आप हमेशा उन पे वो प्रेशर डालते हो। मैं चाहता हूं वर्ल्ड कप से पहले वो प्रेशर उनके सर पे ना है। Absolutely, I totally agree to you कि इस बार अगर आरसीबी जीतता है तो विराट कोहली को एक माइंडसेट भी बन जाएगा कि शायद अगर मैं आरसीबी के लिए आईपीएल जीत सकता हूं तो मैं भारत के लिए विश्व कप भी जीत सकता हूं। Monty, same question to you. What are the expectations from IPL and who do you think will become the champion? Look, I think मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी एंड दिल्ली कैपिटल्स, ये चारों टीमें मेरे हिसाब से प्लेऑफ में जा सकती है। पर मैं ये सवाल अभी है ना,
ये आईपीएल का है एक्सपीरियंस प्लेयरों का एंड यंग क्रिकेटर्स को होगा। देखो जेडी कैप्टनसी मिली है एंड ये होएगा कॉन्ट्रास्ट। हमने देखा है अभी यंग कैप्टन्स कैसे कामयाब होंगे ये आईपीएल में, एंड ये हम देखना चाहते हैं एमएस धोनी, हरभजन सिंह, विराट कोहली वो कैसे परफॉर्म करेंगे। बिकॉज अभी एक्सपीरियंस प्लेयरों को तो सब यही कह रहे हैं चलो एज में नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम ये भी देखना चाहते हैं दैट एज इज नो फैक्टर एंड वो भी अच्छा परफॉर्म करें। एंड यंगस्टर्स जस्ट यंगस्टर्स आते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें एंड सीखें कैसे टीम को कैप्टन करना, कैसे बनाना। बिकॉज जब लीडर ज्यादा होंगे भारत के लिए, वो भारत के लिए बहुत अच्छा होएगा। अब मोंटी आप इधर ही देख लीजिए, मी यंगस्टर, आप एक्सपीरियंस, हमारा भी कॉम्बिनेशन काफी सही जाता हुआ तो ऑन फील्ड भी कुछ उसी तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Jokes apart, I think I've really enjoyed having this conversation with Rajat Pari, of course, and of course my friend Monty Panesar. Great having you both on the show. I hope you also had a good time discussing IPL 2021. Yes, very very much. हाँ, धन्यवाद आपका मौका दिया हमको आईपीएल के लिए आपके साथ बातें शेयर करनी। हम ऐसे ही आपके साथ करेंगे जब आईपीएल शुरुआत होगी। Absolutely. And what are your thoughts, Rajat Pari? सेम वेदांत, एंड थैंक यू सो मच वेदांत एंड मॉन्टी, आपके साथ व्यूज शेयर हुए और आगे भी लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले टाइम में आईपीएल जब हो रहा होगा तो हम अपनी चॉइसेस सामने रख पाएंगे और उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट डेफिनेटली। Absolutely. We all are looking forward to having a great IPL 2021. We hope that you enjoyed the show. As Rajat Pari said, stay home, stay safe, and let's be COVID free. That will be the target of Indian T20 League this season. We'll be joining you guys for a pre-match 10-over show, mid-innings 10-over show, and of course post-show for all the games. And of course, our cricket experts, Rajat Pari and of course Monty Panesar, will be there to analyze all of it. Thank you so much, everyone, for joining us here on SportsTiger. We will be joining you guys very, very soon. Less than 24 hours away for the first ball to be bowled in 2021 season. Thank you. Cheers.